creating stereotypes. So far, we have covered the differences in prejudice, and we talk about the prejudices. What are prejudices? Like when we make negative opinion about some people and we treat them with disrespect, we treat them very badly, and we hurt them. So that is prejudice, making negative opinion about somebody. But now in this section, we will read about stereotypes. What are stereotypes? So we all have come across the gender differences. We all know that there is a kind of gender differences, though it has reduced to some extent, but still it is there. We tend to discriminate among the genders, male, female, and other genders too. So this society has created kind of boundaries, kind of rules, that a man should behave like this only and a woman should be like this. They cannot go beyond this boundary, right? But all this is wrong. This is not like this. हम किसी को इस तरह बाउंड्रीज में नहीं डिफाइन कर सकते कि ये सिर्फ इसी तरह होने चाहिए. सो हियर सम स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू सी कि जनरली ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो किन लोगों के लिए यूज की जाती हैं, वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर गर्ल्स और बॉयज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड सी योर self whether you will put the statement in the girls section or boys section. So for example, they are well behaved. So usually what happen, we use this statement or we interpret this statement as for girls only, right? When we read this statement, what comes in our mind first is girls, right? So they are soft spoken and gentle. Again, this is like the first statement, that the girls come in our mind first, right? So like this you can put these statements under this girls and boys section. So let me tell you, like generally क्या होता है कि किस statement को किसके अंदर रखा जाता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं. तो ये हो गया girls के लिए. People use this statement for girls, right? They are physically strong. So this is basically used for boys, and the second one is also for girls. They are naughty, again for boys, right? They are good at dancing and painting for girls. They don't cry for boys. You must have come across the statements like boys don't cry, they are strong. You are a boys, how can you cry, right? So they are rowdy for boys. They are good at sport for boys. They are good at cooking for girls. And you must have seen people for boys who are very good at cooking. They're emotional for boys, no, for girls. Yes, the statement is used for girls. So here we can see that these statements are generally categorized, like कि हम generally इन statements को सिर्फ girls के लिए यूज करते हैं, and इन कुछ statement को सिर्फ boys के लिए, कि boys इस तरह के होने चाहिए, girls इस तरह की होनी चाहिए. और अगर हम उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जैसे कोई लड़का रो रहा है तो हम कैसे, कैसा लड़का है तो रो रहा है, you cannot cry, लड़के रोते नहीं हैं, right? So ये सब चीज़ें होती हैं. बट अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? दे आर वेल बिहेव्ड, क्या सिर्फ गर्ल्स ही वेल बिहेव्ड होती हैं या फिर सारी गर्ल्स वेल बिहेव्ड होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी गर्ल्स हैं जो वेल बिहेव्ड नहीं होती, या फिर बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ स्टीरियोटाइप. They are soft spoken and gentle. No, I've seen a lot of boys being soft spoken and gentle, and lot of girls who are not gentle and soft spoken, right? तो इस तरह आप इन सभी स्टेटमेंट्स को देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज पे ही लागू होती हैं या गर्ल्स ही इस तरह की होती हैं, ऐसा नहीं होता, राइट? So let's move forward. So they have taken the statements, they don't cry, right? So this statement is generally associated with boys. ये लोग ये जो statement है ये लड़कों से जोड़कर देखी जाती है कि ये statement किसके लिए है? लड़कों के लिए. So जब कोई बच्चा जो है, छोटा लड़का स्पेशली जब गिर जाता है या फिर उसे कोई चोट लग जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं? अरे रो मत, तुम एक लड़के हो, राइट? बॉयज जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, दे आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है, ठीक है? सो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स उनको बोली जाती हैं. और फिर वो जो बच्चा है वो इन्हीं चीज़ों के बीच में, इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में वो बड़ा होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को सुन के वो बड़ा होता है, और वो धीरे धीरे इवेंचुअली ही स्टार्टेड बिलीविंग दीज थिंग्स कि बॉयज़ जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, दे आर ब्रेव. और अगर फिर उन लोगों को अगर लगता भी है कि ऐसे रोने जैसा फील भी होता है, वो फिर भी अपने आप को रोकते हैं रोने से, राइट? और उन्हें लगता है कि ये एक वीकनेस का साइन है. उन्हें लगता है अरे आई एम अ बॉय, आई एम क्राइंग, मैं तो वीक हूँ. फिर इस तरीके से उन्हें लगता है कि नहीं, मैं वीक नहीं हो सकता, आई कांट क्राई, राइट? सो इस तरह कुछ मेंटली उन लोगों का पूरा प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर तुम, जैसे रोने से क्या होता है, मन हल्का हल्का हो जाता है, राइट? सो अगर किसी को रोने जैसा लग रहा है और वो नहीं रो रहा तो उस पर और मेंटल प्रेशर आएगा, राइट? सो क्या होता है कि जब भी
काफ़ी सारी सिचुएशन में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐसा लगता है कि उन्हें रोने जैसा लगता है या फिर उन्हें रोने का मन करता है, जबकि खासकर जब वो गुस्से में होते हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया होता है कि जैसे बहुत ही इमोशनली कोई चीज़ हो गई हो, तो उस टाइम पे दोनों ही बॉयज़ एंड गर्ल्स को रोने जैसा लगता है, रोने का मन करता है। बट क्या होता है कि क्योंकि जो बॉय है वो इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में बड़ा हुआ है, इसी माहौल में बड़ा हुआ है कि लड़के रोते नहीं हैं, ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, तो वो अपने आप को सिखा लेता है कि उसको नहीं रोना है, राइट? और अगर एक अडल्ट बंदा रोता है, कोई ग्रोन अप बॉय रोता है, तो उसे क्या लगता है कि लोग जो है उसको चिढ़ाएंगे, उस पर हंसेंगे, राइट? सो वो अपने आप को ऐसा करने से रोक लेता है। सो दिस इज़ द वे बॉयज़ आर, दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। सो ये सारी वो स्टेटमेंट हैं जो हम सबको कॉन्स्टेंटली सुनने को मिलती हैं, राइट? और हम लोग इस पर ज़रा भी नहीं ध्यान देते कि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों लड़के सिर्फ इसी तरह के हो सकते हैं, क्यों लड़कियों को सिर्फ ऐसा रहना चाहिए। हम लोग सोचते नहीं और जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं और सोचते हैं कि दिस इज द ओनली राइट वे टू बिहेव फॉर अ गर्ल और फॉर अ बॉय, राइट? सो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू लोग क्या करते हैं कि हर गर्ल को या फिर किसी बॉय को एक पर्टिकुलर इमेज में फिट कर देते हैं, लाइक अ बाउंड्री, कि तुम सिर्फ इसके अंदर रह सकते हो, तुम इसी तरह बिहेव कर सकते हो। तो ये जो बाउंड्री है किसने क्रिएट किया है? ये सोसाइटी ने क्रिएट किया। और सोसाइटी में कौन है? हम लोग हैं। तो इसका मतलब ये जो बाउंड्रीज हैं ये खुद हम ही लोगों ने क्रिएट किया और इसे हम ही लोग तोड़ भी सकते हैं, राइट? सो अगर आप इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान दोगे कि बॉयज डोंट क्राई और दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दे आर वेल बिहेव्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉर गर्ल्स, तो आप नोटिस करोगे कि ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम इन पर ध्यान दें तो ये सब हमें बचपन से नहीं होती हमें, ठीक है? बाय बर्थ हम इन सारे ट्रेट्स को लेकर पैदा नहीं होते। कि जब बच्चा कोई पैदा होता है, वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, सो उसमें क्या होता है कि सब रोते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि जैसे जो लड़का पैदा हुआ है तो वो रोएगा ही नहीं और लड़की है तो वो रोती रहेगी, ऐसा नहीं होता, राइट? सब क्राई करते हैं, सब हंसते हैं, सब खेलते हैं, राइट? बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस फैमिली में जो हम रह रहे हैं, तो जिस तरीके हमसे बातें बोली जाती हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जाता है हमारे आसपास, तो उस तरीके से ही वो जो इंसान है वो ग्रो अप होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें बाय बर्थ नहीं होती, ये समाज, ये सोसाइटी हमें वैसा बिहेव करने पे एक तरह से मजबूर सा कर देती है कि ऐसा ही होता है, तुम इसके बाहर नहीं जा सकते, राइट? सो जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर देते हैं, उनकी एक इमेज बना देते हैं कि ये लोग तो सिर्फ इसी तरह के होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, राइट? वी स्टीरियोटाइप पीपल व्हेन वी फिक्स देम इनटू अ पर्टिकुलर इमेज। सो जब लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं और फिर उनको किसी पर्टिकुलर इमेज में फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जैसे कि वो स्टिंगी होते हैं, वो कंजूस होते हैं, दे आर लेजी, वो क्रिमिनल होते हैं, वो डम होते हैं। तो कुछ इस तरह की जब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करते हैं उनको रेफर करने के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं, लाइक सो नॉट टू ऑफेंड एनीवन। आप जनरली देखोगे कि जैसे मुस्लिम जो होते हैं उनको देखा जाता है कि वो सिर्फ टेररिस्ट होते हैं या फिर वो सिर्फ लड़ते रहते हैं, राइट? बट ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जबकि बहुत सारे बाकी जो रिलीजन के लोग हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, दंगे वगैरह करते हैं या फिर वो लोग भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, या बहुत सारे वो लोग हैं जो टेररिस्ट होते हैं मुस्लिम लोग के द्वारा अलावा, राइट? बट जनरली क्या किया जाता है? उन लोग को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि सिर्फ यही लोग ऐसे होते हैं, जबकि दिस इज नॉट ट्रू। सो आपको हर तरह के लोग देखने मिलेंगे, हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर पर्टिकुलर एरिया में, राइट? इस वर्ल्ड में आपको हर तरह के लोग हर जगह दिखेंगे। तो हम किसी पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर पर्टिकुलर कंट्री को इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग तो सिर्फ ऐसे ही होते होंगे, राइट? वी कैन नॉट डू दैट। और क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आपको हर जगह गरीब दिखेंगे, हर जगह अमीर दिखेंगे, आपको हर जगह स्टिंगी लोग दिखेंगे, आपको हर जगह जनरस लोग दिखेंगे, राइट? हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को या फिर पूरी कंट्री को उसी इमेज में डाल देना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे पुलिसमैन जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं, बट अगर एक आध भी पुलिसमैन को आप देख लोगे कि वो सही से काम नहीं करते हैं, वो दे आर टेकिंग ब्राइब्स, तो यू विल थिंक दैट द होल पुलिस कम्युनिटी इज लाइक दैट, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को या फिर पूरी कम्युनिटी को इस तरह ट्रीट कर दिया जाता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, राइट? सो स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है? हम सभी लोगों की
जो यूनिक पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, राइट, उनकी जो अपनी स्किल्स होती हैं, सो उस पूरे बंदे की यूनिकनेस को हम लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने उसे एक इमेज में बंद कर दिया कि ये तो ऐसे ही होंगे। तो जो उसकी पर्सनल, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं है, राइट। और इस स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, राइट। बहुत सारे लोगों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोगों को जो चीज़ वो करना चाहते हैं, जो वो अच्छे हैं जो काम करने में, वो उससे वंचित रह जाते हैं, राइट। सो ये एज अ सोसाइटी हम सभी को अफेक्ट करता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन अ स्कूल देर आर सम गर्ल्स हु वांट टू बी फॉर्म अ फुटबॉल टीम एंड दे आर गुड एट फुटबॉल, right? And there is already a football team of boys, but now girls also wanted to form a football team and they want to play on the behalf of their school. But their teachers are kind of narrow minded, and they stereotype girls that females cannot be good at sport, or they cannot be good at more physically active sports like football. So they denied them and they don't support them that no, you cannot form your football team, right, and you cannot participate in the games like football. They say that these games are not for girls. So इससे क्या होगा कि जो गर्ल्स हैं, जबकि वो अच्छी हैं फुटबॉल में, अपनी जो उनकी स्किल्स है, जो उनकी क्वालिटी है, वो उन्हें शो ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी कि वो आगे जाके पार्टिसिपेट करें, राइट। उन्हें जब इतने इनिशियल स्टेज पे ही रोक दिया जाता है, तो इस तरह। और देखो कि क्या पता उस स्कूल के लिए वो गर्ल्स जो है वो मेडल ला सकें, तो क्या हो गया, उनके स्कूल के खुद उनका जो पूरा स्कूल है वो नीचे चला गया, राइट, उनकी ग्रोथ होने से रुक गई। सो इस तरह सभी लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और इसलिए वी हैव टू बी ओपन माइंडेड। सो आगे से आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, राइट, सो या फिर किसी पर्सन के भी बारे में बात करें, तो आपको नोटिस करना है कि आप किस तरह उसको उसके बारे में बात कर रहे हो, राइट, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कि और ध्यान रखना है कि आप उसको स्टीरियोटाइप ना कर दो, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, अरे ये तो ऐसा ही करते हैं, या इन्हें तो ऐसा होना चाहिए, वाई ही इज डूइंग दैट, ही कैन नॉट डू दैट, राइट। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यू शुड नॉट स्टीरियोटाइप पीपल, यू हैव टू एक्सेप्ट द पीपल एंड उनसे मिलो, उनसे उन्हें जानो, और उनकी जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी यूनिकनेस है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। और जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे, जब आप दूसरों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करोगे, तभी लोग आपको भी करेंगे, राइट। So here some illustrations are given, and with the help of these statements you will be able to know more properly about stereotype, right? So in the first illustration, what is written, people say all sort of things, I limp, I lisp, all this and more. Sometime I feel so sad and sore. Folks make fun, it's nothing new. If you were I, what would you do? सो इसमें ये बच्चा बोल रहा है कि लोग मेरे बारे में हर तरह की चीज़ें बोलते हैं, कि मैं लिम्प करता हूँ, लिम्प मतलब जैसे लंगड़ाना, आई लिस्प, लिस्प मतलब तुतलाना, राइट, कि मैं लंगड़ाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें। और इस सब की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है, सभी लोग मेरा फन बनाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, बिकॉज ही हैव टू सी ऑल दिस थिंग एवरी टाइम एवरीवेयर। तो इसीलिए अब इस बच्चे के लिए ये चीज़ नई नहीं लग रही। तो वो कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। सो अब सबसे पहले मुझे सच सच बताना आप लोगों में से कि कितनों के दिमाग में इन सभी इलस्ट्रेशंस को देखकर आया कि ओह दीज पीपल आर डिसेबल्ड, राइट, या फिर ये तो ऐसा है वैसा है, किस किस के दिमाग में आया था, राइट। सो अभी अगले पे चलते हैं। इट इज रिटन, यू लुक सो सो डिफरेंट। सो इस बच्चे को ज़्यादातर क्या सुनने मिलता है दूसरे लोगों से, जो भी लोगों से ये मिलता है, तो इसको क्या सुनने मिलता है कि अरे तुम तो बड़े अलग से हो। आई एम अ पर्सन आई फील शाय, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। फ्रॉम स्टेयरिंग आइज आई वॉन्ट टू हाइड, तो जब लोग मुझे घूरते हैं तो उनसे मैं छुपना चाहता हूँ, उनसे बचना चाहता हूँ। तो मतलब हमेशा लोग जो हैं इस बच्चे को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रों से देखते हैं, और जिसकी वजह से इसको बच्चे को बड़ा बुरा सा लगता है, अलग फील होता है। इज अ माइंड ओके, क्या इसका दिमाग सही है। सो आप पहले तो देख सकते हैं जो बच्ची है, शी इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर एंड शी इज पेंटिंग समथिंग, राइट। सो शी हैव टू हेयर थिंग्स लाइक इज अ माइंड ओके, कि इसका दिमाग ठीक है। तो शी इज सेइंग जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। तो क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो वॉबली हैं, मतलब जिसे थोड़ा सा लंगड़ाती हूँ या फिर जो डगमगाते हैं चलने में, राइट, तो लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग भी ऐसा ही है। और पैरों का और दिमाग का क्या रिलेशन, राइट, कि भाई ठीक है, उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस बच्चे को इसके
टैलेंट को शो करने से, इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसके पास अलग टैलेंट है, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती है, तो पैर से ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हाथ से बनती है, तो ये अपना टैलेंट वहां शो कर सकती है, राइट। सो द चिल्ड्रन यू सी इन द illustrations here were seen as disabled, राइट। तो वही मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि आप लोगों में से भी किस किस के दिमाग में सबसे पहले ये आया कि these people are disabled, ठीक है। दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड नाउ एंड द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इन बच्चों की क्या है, स्पेशल नीड्स है। बस जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं, पर इनको थोड़ी सी स्पेशल नीड है चलने के लिए, इनको बस थोड़ा सा ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं, राइट। और इनको इसलिए कभी कभी स्पेशली एबल्ड भी बोला जाता है कि भाई ये चलने में अच्छे नहीं है। मान लो ये बच्ची है, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में, बट शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, तो स्पेशली एबल्ड हुई, राइट। शी कैन डू थिंग्स डिफरेंटली। और यू मस्ट हैव सीन वीडियोज ऑफ पीपल लाइक जिनके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है या उनके हाथ नहीं है, तो वो अपने सारे काम, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ देयर वर्क विद देयर लेग्स, राइट। तो आपको देखने मिलेगा, तो व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम स्पेशली एबल्ड। वो अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बट हमसे वो पीछे नहीं है, दे आर डूइंग एवरीथिंग वी डू, राइट। और ये जो हमने चीज़ें पढ़ी पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स की, मैं लंगड़ाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, ये सारी चीज़ें, और लोग मुझे घूरते हैं या बड़े अलग तरीके से देखते हैं और मुझे अलग समझते हैं, या फिर इस वाली पिक्चर में कि लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग ही खराब है या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने क्या देखा, दीज आर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, राइट। सो आगे से आप किसी भी ऐसे बच्चे से मिलोगे, इंसान से मिलोगे, जस्ट रिस्पेक्ट देम और उनको जस्ट अपनी तरह ट्रीट करो। वो तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है, बस वो तुमसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम यू, दे कैन डू ऑल द थिंग्स विच यू डू, राइट। सो उनको अच्छे से ट्रीट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और हर उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करनी है, अप्रिशिएट करना है, राइट।